Ladies and gentlemen, just a day after putting in his papers, Kejriwal will soon move out of the Chief Minister's residence, Sheesh Mahal, called by all, loaded with grandeur and comfort, fit for a king, as people called it. Yes, ladies and gentlemen, Times Now is the only channel that revealed the inside luxury of Sheesh Mahal, from a one-of-a-kind skylight roof with royal curtains bought at nearly ₹1 crore, renovation, spending nearly 45 crores of public money. But the Aam Aadmi Party says that despite requesting Kejriwal, he's adamant about leaving this residence, and a new chief minister, Atishi, will move in just like the plan always was, and he will now live his life like an Aam Aadmi. The BJP has called it an AAP script filled with quote-unquote nautanki for the upcoming elections. Listen in to the war of words. उन्होंने तय किया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने वाली सारी सुविधाओं को वो त्याग देंगे। वो अपना सरकारी आवास खाली करेंगे, मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे, और अगले कुछ हफ्तों के अंदर वो नए ठिकाने पर जाएंगे। आम आदमी पार्टी की राजनीतिक नौटंकी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं आपको बताता हूँ अगले सीक्वेंस क्या होंगे। भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री केजरीवाल घोषणा करेंगे कि मैं 2 दिन में 3 दिन में घर शीश महल खाली करूंगा। कठपुतली मुख्यमंत्री उनके पैरों में लिपटेगी, नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन वो कहेंगे नहीं मुझे तो जाना है। You were watching the News Hour at 9. Stay tuned. Number 2. Joining the debate with Shehzad Poonawalla is Reena Gupta, and thank you very much for joining me, Reena Gupta. Welcome back to Times Now. And Reena Gupta, my question, big announcement coming in. First the resignation, now the decision to move out of the Chief Minister's residence. Is this pressure? Is this an image makeover? Is this taking the high moral ground because elections are around the corner? Navika ji, politics for Mr. Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party has always been a means to serve our people. And in line of that, when he decided to give up his position of Chief Minister of Delhi, he decided to vacate the residence itself, which is a residence for the elected Chief Minister of Delhi. Mr. Arvind Kejriwal joined politics to be able to serve the people of Delhi. It's never been about money, grandeur, or anything like that. All of that he could have earned in his previous job as an IRS commissioner. It's a very, very simple family. I've known them for many, many years. And they have decided that till the people of Delhi pass them through an Agni Pariksha, वो बिल्कुल एक आम आदमी पार्टी की, आम आदमी के तरह रहेंगे। और ये जो इस्तीफा भी उन्होंने दिया है नविका जी, वो सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे दिल्ली के लोगों का सर्टिफिकेट चाहिए, मुझे भारतीय जनता पार्टी का और किसी और पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर दिल्ली के लोग कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं तो मैं ईमानदार रहूंगा। और जो भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठ का एक जाल सा बनाने की कोशिश करी है, चाहे वो लिकर स्कैम के माध्यम से हो या किसी और तरीके से हो, वो कोई भी कीचड़ अरविंद केजरीवाल जी पे चिपकने वाली नहीं है। आप देखेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार तो 70 की 70 सीट आम आदमी पार्टी को मिलने वाली हैं। बीजेपी इज क्वाइट befuddled. They don't know what to do, what has hit them, and who is it that will be presented as a face in front of Mr. Arvind Kejriwal. They don't have anybody. We have challenged them that if you are ready, do the election in 2 months. But वो बेचारे काफी फंबल कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि Shehzad Poonawalla, has Arvind Kejriwal taken the wind out of the sails of the BJP by his sudden resignation, by the decision to leave? आप इसे नौटंकी क्यों बुला रहे हैं? अगर आप अटैक कर रहे थे और अब वो छोड़ रहे हैं तो you should welcome it. Navika, I just have one request. It's only the two of us. As she spoke, I did not interrupt one sentence, so I hope she will give me that courtesy, because she has a bad habit of interrupting, and you see it will happen in the course of the debate. First of all, she said that Arvind Kejriwal resigned as Commissioner of Income Tax, right?
IRS association clarifies Arvind Kejriwal was never the income tax commissioner. He resigned as a junior position. इतना तो झूठ बोल देते हैं भाई, आपका मॉडल इतना बढ़िया था, your model was so great. तो you lost 7-0 right now when you sought the mandate on the model only and on the fact that jail का बदला वोट से लेना, and that too after going with Congress. When your model is so good, why do you need to go with Congress party, the party that you said बच्चों की सौगंध खाते हैं हम, कभी इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे. Anyways, forget that. This is not resignation, Navika. It is redesignation. He has become from de jure de facto CM. He has become CM जो पहले जेल वाले थे, then he became bail वाले, and now he has good proxy CM. I have not said this. सौरभ भारद्वाज क्या बोले, खड़ाऊ CM है ये. She will be CM only for 1-2 months, and then the kursi belongs to Mr. Kejriwal. So you have undermined a woman CM by calling her a खड़ाऊ CM. And by the way, they are talking about Prabhu Shri Ram. राम जी की सबसे मेन बात क्या थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए. आपने क्या कहा था, सोनिया को जेल में डालेंगे, मुलायम को जेल में डालेंगे, अखिलेश को जेल में डालेंगे, और उन्हीं के साथ हो गए. और दूसरी बात क्या बोली थी कि मैं बच्चों की सौगंध खाता हूं, बड़े मकान में नहीं जाऊंगा, 2 बेडरूम के रूम में रहूंगा, वैगनार नहीं छोड़ूंगा. आज सब कुछ भूल गए. अब जब नौटंकी करना है वोट लेने के लिए तो वहां पे आप शीश महल छोड़ रहे हो. बताइए ना, इतना ही शीश महल कहता तो खोल के बता देते नाविका की रिपोर्टर भावना को एक बार क्यों जेल में डाला उनको, पर छोड़ देते इस विषय को. अब जख्म पुराने में नहीं खुरदना चाहता हूं नाविका जी, क्या है ना, बुरा लग जाएगा. चाल बदला है, चेहरा बदला है, चाल नहीं बदली है. पहले तो इनके खुद के डिपार्टमेंट में देख लीजिए आतिशी जी के, एजुकेशन में घोटाला किया है, वाटर में घोटाला किया है, 35 लोग डूब के मर गए, जल बोर्ड में घोटाला किया है, पीडब्ल्यूडी में घोटाला किया है, शीश महल में घोटाला किया है. मैं केवल 2 चुनौती देकर अपनी बात विराम करना चाहता हूं. देखिए, पहले तो बताइए कि नाविका जी को एंट्री देंगे शीश महल में और बताएंगे कि शीश महल मुख्यमंत्री आवास कैसे दिखता है, पहली चुनौती. दूसरी चुनौती सिर्फ इतनी है कि आतिशी जी के, देखिए वैसे तो मैं माता पिता क्या बोलते हैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर उनका नाम लंबे समय तक मार लेना था, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट. आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ऑफिशियल, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर बनी है, विल शी कंडेम द व्यूज ऑफ तृप्ता वाही जी एंड मिस्टर सिंह हु सेड दैट अफजल गुरु वाज रॉन्गली हैंग्ड एंड द पीपल. She has dropped Marlena. No, and if parents give us a name, what can we do about it? नाविका नाम का नहीं, पार्टी के काम का. देखिए बीच में नहीं, मैंने आपसे बीच में बोला था, रिक्वेस्ट किया था, बाटला हाउस एनकाउंटर को गलत बताना और प्रूफ मांगना सर्जिकल स्ट्राइक पर. ये 1 सेकंड देखिए नाविका, इंटरप्ट हो रहा है, मैं समाप्त कर रहा हूं, क्वेश्चन समाप्त कर रहा हूं, वरना वो नहीं होगा. नहीं, मुझे फ्रेम करने दीजिए, मैं फ्रेम करूंगा. बाटला हाउस पर आम आदमी पार्टी ने सबूत मांगा, सर्जिकल स्ट्राइक पर आम आदमी पार्टी ने सेना से सवाल पूछे, इसीलिए आज आम आदमी पार्टी बताए कि व्हाट आर देयर व्यूज ऑन अफजल गुरु स्टैंड ऑफ पेरेंट्स ऑफ आतिशी, व्हिच शी हैज नॉट सेड दैट आई कंडेम इट. उसके ऊपर स्टैंड बताइए. रीना गुप्ता जी. देखिए नविका जी, बहुत हंसी आती है शहजाद की ऐसी बातों पे. शहजाद मोदी जी को पुअर कॉपी ऑफ हिटलर बोलते थे. शहजाद के पिताजी, शहजाद की माताजी या पहले शहजाद के भाई, उन सब पे तो मैं जा ही नहीं रही हूं, क्योंकि मैं विश्वास नहीं रखती कि माँ बाप के क्या व्यूज हैं और बच्चों के क्या व्यूज हैं वो सेम होने चाहिए. आज के मॉडर्न भारत में इस तरह की बातों का कोई मायना नहीं है. लेकिन शहजाद पूनावाला ने खुद बोला था मोदी जी को हिटलर की पुअर कॉपी, तो आज शहजाद पूनावाला के व्यूज बदल गए. कोई हृदय परिवर्तन हो गया जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, उसके बाद शायद सत्ता के लालच में हृदय परिवर्तन हो गया हो, तो शहजाद भाई बता दें. जब शहजाद भाई की पार्टी ने पीडीपी की मुफ्ती पीडीपी पार्टी के साथ सरकार बनाई थी. फेयर क्वेश्चन, शहजाद रिस्पॉन्ड. वेरी फेयर क्वेश्चन, मैं तो कह रहा हूं वेरी फेयर क्वेश्चन, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंटरप्शन बंद करवाइए, मुझे जवाब आने दीजिए. वेरी फेयर क्वेश्चन. रीना जी, समय का कंट्रोल है, समय का कंट्रोल है, इसीलिए आपने जो सवाल पूछा बहुत सही है. पहले इस सवाल का जवाब हो जाए, फिर अगला चार्ज लूंगी. राधिका जी, शांत करवाइए, पहले मेरी बात खत्म नहीं हुई है. मेरी बात दादागिरी है क्या नाविका? आप मुझे पूरा मौका दीजिए, काटना मत. वाला पहले अरे बोलने तो दीजिए. आप बोल गई, आधा घंटा बोल रही हैं. सुनिए, शहजाद पूनावाला, अरे जवाब तो सुन तो लो. शहजाद पूनावाला, जो मोदी जी ने 10,000 करोड़ में अपना महल बनवाया है, उसका कब हम लोगों को आप भ्रमण करवाने वाले हैं? जो आपके अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने, शिवराज चौहान ने 100 करोड़ का जहाज खरीदा, जो हेमंता विश्व शर्मा ने, अब नाविका वो पॉइंट से पूरा हट गई. इशू हम भी का थोड़ा सा एंजॉय. अब मुझे पूरा जवाब देने दीजिए नाविका, मैं किसी के. ओके रीना जी, आपने बहुत से चार्जेस लगाए, आप पहले इनका जवाब दे दे शहजाद, फिर आप अगला चार्ज लगाइएगा. शहजाद जवाब दीजिए.
नाविका जी, इनका सवाल बिल्कुल वाजिब है। जब मैं अगर आतिशी जी के परिवार पे सवाल उठाता हूं तो उन्होंने मेरे पुराने सवाल बताए। ये बिल्कुल सही बात है। मैंने फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन रीना जी, इसी चैनल पर जब मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो मैंने वो हर एक व्यू के लिए रीजन भी बताया था और उसको कंडेम भी कैटेगोरिकली किया था। पर मैं आज पूछना चाहता हूं, आतिशी जी मेरी तरह हिम्मत दिखाते हुए माता पिता के व्यूज जो अफजल गुरु के, प्लीज में नहीं मैडम, प्लीज बीच में नहीं, माई वॉइस शुड नॉट बी ड्राउंड आउट मैम, प्लीज डोंट मेक मी डू दिस। No, Navika, this is not fair. This is interrupting. No, this is not right. The flow has been broken again. Reena ji, allow him to complete, and I will give you an opportunity. Calm down. Calm down. I will start again. Allow him to complete, and I will give you time for counter. I will say the full thing again. Navika, I have the courage of conviction that yes, I said those things in the past, and when I have taken a stand against the Congress party on this channel and on every other public platform, I explained my views and I explained that why I am disassociating myself with those views. But Atishi Marlena, who kept Marlena, has never explained whether she and her party accept the views on Batla, accept the views on surgical strike, accept the views on Afzal Guru. And now I will ask you that when you are taunting me for my views, these are the views. चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे आप तो सबको चोर बोलते थे, आज उन्हीं चोरों के साथ बैठकर। इसलिए मिस मैडम, आई एम नॉट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, Atishi is, and therefore it is necessary to know what is Atishi's views on Afzal Guru. Okay, by the way, let me say, in 2019, in an interview to Amar Ujala, she had said, repeat it. She had Then said repeat that it. she does not stand on Afzal Guru, maintain the same stand as her parents. One second. She has said That's it. her interview. Let me just 1 second, one line counter. If she has said this, why can't she say it after becoming chief minister? Okay. That means her views have changed. That means in 2024 she is standing with Afzal Guru. Therefore she is not taking a stand. Because we haven't had her on a debate on this issue. 1 second. The mic was put to her. Mic was put to her. BJP has asked officially this question. Reena BJP ji, has asked please this question of her. respond. Reena We ji, should not please defend her. She has to answer the question. Reena ji, Atishi please must respond. answer. Atishi क्यों नहीं बोल रही आज? एक तो मतलब शहजाद पूनावाला, आप होते कौन है दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल पूछने? ये क्या तरीका है? उनको जब समय मिलेगा वो बोलेंगी। मैं लेकिन दिल्ली का आज निवासी हूँ। important ये है कि दिल्ली के लोग दिल्ली के लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दिल्ली के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में बढ़िया स्कूल बने, दिल्ली में बढ़िया स्वास्थ्य सेवा बने, जो कि आप सब कुछ रोकना चाह रहे हैं। दिल्ली के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में बढ़िया बस सेवा चलती रहे। दिल्ली के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में फ्री बिजली मिले। Completely out of time. Okay, completely out of time. शहजाद, लेकिन रीना गुप्ता जी, इसी दिल्ली में कोचिंग सेंटर में लोग मरे हैं और जो हमने बरसातों में हाल देखे हैं, शायद ये भी आम आदमी पार्टी की सरकार देख सकती थी। पर बहरहाल शहजाद, 10 सेकंड। दिल्ली हाईकोर्ट अप्रैल 2024 टिन के स्कूलों में जिंदगी, दिस इज नॉट द वे भाई, शी कीप्स इंटरप्टिंग all the time. I'm completely out of time. Make your point. She has a very bad habit. She doesn't know how to debate. 5 seconds, complete your But point. how is she keeping on screaming? You make your point. How do I make my point? The audience won't be able to No, hear. audience will hear. दूसरा था, that is because Audience will hear. Shehzad, make your point. दिल्ली हाईकोर्ट अप्रैल 2024 टिन के स्कूलों में लाखों जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। जैन 2024 नो यूनिफॉर्म एंड टेक्स्ट बुक फॉर 6 लाख स्टूडेंट्स, दिसंबर 2023 नो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लास 9 1 लाख स्टूडेंट्स फेल। दिस इज योर एजुकेशन मॉडल एंड आई एम एंटाइटल्ड टू आस्क द चीफ मिनिस्टर। आई एम अ वोटर इन दिल्ली, आई एम अ वोटर ऑफ इंडिया, आई एम अ सिटीजन, आई एम एंटाइटल्ड Reena ji and Shehzad Poonawalla, well, the war is on because elections are around the corner. The Aam Aadmi Party, well, whether it is an image makeover or whether it is pre-election positioning, the fact of the matter is it's a new political war in the capital. We're going to see more of this. But what we now hear is that 21st of September is when Atishi will be sworn in as the chief minister. That is the recommendation that has been sent by the LG of Delhi to the President of India. We'll keep our eyes on this political battle going forward here till elections take place for Delhi. But for now, thank you very much, Reena Gupta ji, and thank you, Shehzad Poonawalla ji, for joining me on the News Hour tonight. Good night and be safe.